Okay, so in today's lecture, we'll study about cloud computing. Okay, so this will be the introduction to cloud computing. So we have service provider in which we use services like MPLS. We have ISP in which we use internet. Same thing we have as cloud service provider in the cloud computing. Okay, and we generally call it as CSP. Okay, so there are some bigger MNCs like which call itself as a CSP, that is cloud service provider, that is Amazon Web Service, Microsoft, and Google. Okay, so basically here in this cloud service we have mainly three types of models. Okay, so there are some cloud service models. Okay, so basically they are infrastructure, we call it as IaaS, infrastructure as a service. We call it as PaaS, platform as a service, and we have software as a service. So we will discuss about these platforms in a little while. Okay, first we will study different things. Okay, what is IaaS, what is PaaS, and what is SaaS? Okay, okay. So now, if we want to build our own cloud infrastructure, na, if we want to, यार mute कर लो. If we want to build our own cloud infrastructure, na, then we have certain types of models. Okay, build our own cloud infrastructure model. Then we have some different types of models. We generally call those types of model as cloud deployment models. Okay, now we have like public cloud, we have private cloud. This will be for everyone. This will be for
for only the users who want to just access in their own private environment. And there is hybrid. We know what is hybrid. Hybrid basically means the combination of public and private. Okay, some parts will be available for the public network and some parts will be remain in the private network. Okay, it is a combination of public and private. Now we have our community cloud. Okay, in this community cloud, what happens basically here, multiple types of companies merge their data, okay, in a single cloud platform. So we call it as multiple, we can call it as multiple companies will be there here in the single community cloud. We know its name suggests community. Okay. Now we will introduce why virtualization. Okay. First, I will let you know what is virtualization. Then we will discuss why cloud computing, why cloud came, and why virtualization was not up to the mark. Okay. So we will start with the introduction to virtualization. And we will study how virtualization works. Okay, so first let us understand there are some types of virtualization. So basically those types are data virtualization, desktop virtualization, server virtualization, OS virtualization, with that is operating system virtualization, and our last one is network virtualization. Okay, basically here we will perform virtualization on the data here in the desktop. Okay, we can install multiple, like multiple desktop will work. Okay, here on the server we will install like multiple platforms, and here the OS virtualization in the VMware we do it. We install multiple OS of different vendors. Like here in my laptop, I have installed the Windows and Linux, and this is network virtualization. So basically, for this, we need some virtual machine to install all these machines. Okay, so we have for that we have hypervisors. Okay, and they have two version 1 and version 2. So what these hypervisors are? Basically, they are softwares to create virtual machine. Just a second. पहले एक बार खत्म करते, ठीक है, फिर बात करते हैं. Now, what is cloud computing?
अगेन लेट मी यार जिसका भी माइक ऑन है बंद करो। व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? ओके। सो अभी तक जितना भी हमने डिस्कस करा उससे क्या समझे हम? एक क्या डेफिनेशन हम दे सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग को? हम इसको बोल सकते हैं दैट क्लाउड कंप्यूटिंग is the on-demand delivery of the computing power और क्या क्या होता है कंप्यूटिंग पावर? कंप्यूटर पावरिंग समझ रहे हो ना, कि जो भी हमारा सीपीयू जीपीयू रैम वैम वो सारी चीजें, उसकी बात हो रही है यहाँ पे कंप्यूटिंग पावर की। और अपना डेटाबेस स्टोरेज, ठीक है। एंड आफ्टर आईटी रिसोर्सेज थ्रू अ क्या आवाज आ रही है? समझे, म्यूट कर रहा हूँ। एंड आफ्टर आईटी रिसोर्सेज थ्रू अ क्लाउड नेक्स्ट प्लेटफॉर्म। किसके थ्रू ट्रैवल करेगा ये सारा चीज है? डेटाबेस स्टोरेज जो भी है क्लाउड कंप्यूटिंग, अगर कंपनीज को ये सब एक्सेस करना होता है तो वो किसके थ्रू करता है? वाया द इंटरनेट। ओके। तो इसके बहुत सारे फायदे होंगे अगर वो इंटरनेट से अपना क्लाउड सर्विसेज को एक्सेस कर रहा है। इट मींस वो किसी भी नेटवर्क से अपनी सर्विसेज को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। इंटरनेट। और इसका ना एक मॉडल होता है, उसको हम बोलते हैं पे एज यू गो प्राइसिंग मॉडल। इसका मतलब जितना तुम्हें यूज करना है करो, नहीं करना छोड़ दो। तुम्हारे चार्जेस उतने होंगे जितना आपने उसको यूटिलाइज करा है। अच्छा, एक सर्वर दिखता कैसा है अंदर से? अभिनव देखा है आपने? हम्म। नॉट 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 बाय सेटिंग, अंदर सर्वर के अंदर क्या क्या होता है? देखा है। यस यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द हार्डवेयर पार्ट। ओके। तो मेरे को बताना, ठीक है, कैसा कैसा होता है, थोड़ा बहुत मेरे को पता है। जैसे ये हमारे पास यहाँ पे क्या होते हैं? दो सीपीयू हो गए, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास रैम स्लॉट्स होते हैं, यहाँ पे कुछ होंगे, यहाँ पे कुछ, ठीक है। यहाँ पे ये पूरा नीचे मदरबोर्ड एरिया होता है, यहाँ पे कैपेसिटर्स वगैरह लगे रहते हैं, ठीक है। और क्या होता है? इसके ऊपर कूलिंग वूलिंग वो लगा रहता है, उसको क्या बोलते हैं? ऐसे कुछ बोलते हैं उसको। और यहाँ पे फैंस लगे रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे स्लॉट्स होते हैं एसडीडी जो भी यूज हो रहा होता है उसमें, ठीक है। और पोर्ट्स भी यहीं पे होते हैं, रैम स्लॉट्स वगैरह सारी चीजें यहीं पे होती है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे एक पिन होता है, उसको क्लिक करके हम वो चीज निकाल सकते हैं। तो लगभग हर एक स्लॉट लगभग 500 जीबी तक का होता है। वो अप्रोक्स 468 कुछ होता है, एग्जैक्ट मेरे को नहीं पता। तो 500 जीबी तक के एक स्लॉट होते हैं, ज्यादा के भी हो सकते हैं, वो सपोर्ट करते हैं कितने भी। और यहाँ पे मल्टीपल रैम स्लॉट्स होती है, यहाँ पे लगभग 12 होती है, यहाँ पे 6 होती है, यहाँ पे भी 6 होती है, ठीक है। मैं तो डेल वेल के सर्वर की बात कर रहा हूँ। तुम्हारी उसमें कौन से है अभिनव, जहाँ पे तुम काम करते हो? डेल से बस? ओके ओके।
ओके, तो चलो इसी एक्सर के बारे में बात करते हैं। तो अब ना हमारा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, बेसिकली ये 3 चीजों में डिवाइडेड है। एक है हमारा हार्डवेयर, वन इज आवर सॉफ्टवेयर, एंड वन इज आवर नेटवर्क। ओके, अब सॉफ्टवेयर वाला पार्ट भी 2 चीज में डिवाइडेड है। हम अभी सॉफ्टवेयर की ही बात करेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, या तो यूजर कह लो या इंडिविजुअल, वी कैन कॉल इट आइदर अ यूजर और इंडिविजुअल। और जो दूसरा पार्ट होता है वो है कमर्शियल, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा यूजर वाला पार्ट है, इसमें हमें क्या क्या चाहिए होती है। वैसे तो दोनों जगह चाहिए होंगी, बट इधर भी हम क्या यूज करते हैं, रैम, सीपीयू, और क्या क्या चीजें होती है, एचडीडी या एसएसडी, ठीक है, जीपीयू, ठीक है। बट इधर जब हम यूज करते हैं, अगर कोई भी चीज हम यूज करते हैं, तो यहाँ पे कंपनी को क्या करना होता है, एक लाइसेंस यूज करना पड़ता है। जैसे हम लोग अगर यूज करें कोई भी चीज विदाउट, अगर हम लोग को, अब जैसे ये वर्चुअल मशीन चल रही है, ये क्या चल रही है, विदाउट लाइसेंस चल रही है ना। बट कंपनी में ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती, क्योंकि उनका जो फाइन होता है वो एक अच्छा खासा फाइन होता है। ऑल दो कंपनीज कुछ कुछ जगह यूज करती है, बट उन कंपनीज में ऐसा नहीं होगा कभी भी कि एक भी लाइसेंस वाला कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो। एक आध होगा, बाकी सारे उसके रेप्लिका होंगे, ठीक है। पता है ना ये चीज, जो भी एमएनसीज होती है, उनको ये चीजें सॉफ्टवेयर को खरीदना ही पड़ता है। हम लोग तो जैसे क्रैक वर्जन यूज कर लेते हैं, बट कंपनीज ऐसा नहीं कर सकती, ठीक है। अब देखो, ये जो भी हमारे जैसे आपके इसमें कंपनी में कौन सा डेल सर्वर है, ठीक है, उसके ऊपर कुछ मशीनें इंस्टॉल हुई होंगी, अभिनव। हेलो। सो देर आर लॉट ऑफ मशीन्स इन योर डेल सर्वर, बट उस डेल सर्वर के ऊपर भी कुछ हमने एक सॉफ्टवेयर डाला होगा। ओके, आपने हाइपरवाइजर डाला है, ठीक है। तो ऐसे ही एक और होता है, कोई सा भी डाल सकते हो, मर्जी है। एक होता है ECXI, हाँ, ESXI, ECXI या ESXI, ठीक है, ECSXI ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो ये इसका लगभग ये भी 1.5 जीबी तक का होता है, ठीक है। तो ज्यादातर लोग ये यूज करते हैं फॉर दी सर्वर्स, ठीक है। ये ज्यादा अच्छा कंपैटिबल होता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, उससे पहले ना एक चीज बताते हैं, ठीक है। बेसिक्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन, ठीक है, वर्चुअलाइजेशन बेसिक। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जब भी हमारा कोई एक इसमें ना बेस ओएस डलता है, क्या होता है, बेस ओएस, ठीक है। और उसके ऊपर क्या डलेंगी, वर्चुअल मशीन, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता था ना, स्टार्टिंग में पहले मल्टीपल सर्वर्स बनते थे, हर एक उसके लिए। मतलब जैसे अगर हमारे पास एक सर्विस है DHCP की, एक है DNS की, एक है मेल की, ठीक है। तो इन सब के लिए ना यार हमारे पास एक अलग अलग सर्वर्स बनते थे, ठीक है। हमें कोई भी नई मशीन डालनी पड़ती थी, हमें एक नया सर्वर बनाना पड़ता था। क्यों बनाना पड़ता था, बिकॉज वी डोंट हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअलाइजेशन एट दैट टाइम। वर्चुअलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, एक ही सर्वर पे हम मल्टीपल टाइप्स ऑफ मशीन्स इंस्टॉल कर सकते हैं। हम यहाँ पे DHCP की सर्विस भी, DNS की भी, अगर मेरे को आइस चलाना है आइस, अगर पालो अल्टो फायरवॉल चलाना है पालो अल्टो की इमेज, सारी चीजें हम एक ही सर्वर पे यूज कर सकते थे। तो पहले क्या होता था, अगर ऑब्वियसली सर्वर की कॉस्टिंग हाई होती है, और अपना ये इसका जो एरिया होता है वो भी यूज करेगा हमारे डेटा सेंटर में, ठीक है। अगर हमारे पास 5 सर्विस हम यूज करें, तो मतलब 5 सर्वर यूज करने पड़ेंगे, हमें 5 रैकें हमें बनानी पड़ेंगी। तो फिर उससे
हमारा डेटा सेंटर का स्पेस भी बहुत ज्यादा था। और अगर कोई भी हमारा सर्वर है, उसमें कुछ ना कुछ स्टोरेज तो ऐसी होती होगी। अगर 128 GB मिनिमम रैम, इतना तो यूज ही करते हैं। ठीक है, 64 GB या 64 कोर प्रोसेसर बोल लो। ठीक है, सीपीयू की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। या और स्टोरेज ले लो 10 TB। तो अगर इसमें से सपोज यूटिलाइज ही हमारा अगर 2 TB हो रहा है, तो बाकी 8 TB तो हमारा वेस्ट जा रहा है ना। तो ये सारी चीजें क्या होती थी, पहले दिक्कत करती थी। ठीक है, तो अब क्या हुआ वर्चुअलाइजेशन की वजह से, अब क्या हुआ वर्चुअलाइजेशन की वजह से, ये जितनी सर्विसेज है, ठीक है, ये एक ही उसमें आ गई। सपोज हमारे यहाँ पे क्या है, एक ESXi मशीन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक VMware सॉफ्टवेयर। जैसे हमारा हाइपरवाइजर होता है, वैसे ही सारी मशीनें होती है। बेसिकली इनका काम क्या होता है, ये पहले ना जो भी हमारा सर्वर होगा, सपोज हमारा डेल का सर्वर है, ठीक है, तो इसमें हम ये मशीन और ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, एक ESXi सॉफ्टवेयर हमने इसमें डाला। फिर हम इसके ऊपर क्या करेंगे, अलग अलग टाइप्स की मशीन इंस्टॉल करेंगे। जैसे कि मैं अगर चाहता हूं मैं DHCP करूं, DNS करूं, आइस करूं, कोई फायरवॉल करूं, या मल्टीपल फायरवॉल्स करूं, यहाँ पे मेरे को स्टोरेज अलग से बनानी है, स्टोरेज करूं, FTP TFTP सर्वर कुछ बनाना है वो करूं। तो ये सारी मल्टीपल सर्विसेज अब मैं इस सर्वर के ऊपर एक ही साथ इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, ये सारी सर्विस। और इसका जो भी सपोज इसका यही था 128 GB वगैरह, और 64 कोर। ठीक है, 10 TB स्टोरेज, GPU का भी कुछ होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें अब पूरी अच्छी तरीके से यूटिलाइज हो रही है। तो हम ये सारी चीजें अब कैसे कर रहे हैं, डायनामिकली। ठीक है, तो ये जो जितनी सर्विसेज है ना, पहले क्या होता था, हर एक सर्विस के लिए हम पर्टिकुलर एक सर्वर दे रहे थे। बट अब इसमें मल्टीपल सर्विसेज इंस्टॉल हो गई है। तो फिर ये जितना भी जिसको भी बोलो, जैसे 128 GB अगर हमारे पास रैम है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है हमें DHCP को अलग से एक रैम असाइन करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं। ये सब अपना डायनेमिकली चलेगा, ये प्रोसेस डायनेमिकली। जो भी सर्विसेज होंगी उसको जितना यूटिलाइज करना होगा उस सर्वर में से, जितनी रैम यूटिलाइज करनी होगी वो उतनी रैम यूटिलाइज करेगा। जितना क्या बोलते हैं, स्टोरेज उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा, वो उतना स्टोरेज यूटिलाइज करेगा। वो सारा प्रोसेस अपने आप ही होगा, क्या बोलेंगे उसको, डायनेमिकली। तो एवरी सर्विसेज विल टेक रैम, CPU और अपना क्या है, ये स्टोरेज यूटिलाइजेशन कैसे करेगा, डायनामिकली। ठीक है, नाउ अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि बैकग्राउंड क्या है क्लाउड का। ठीक है, वर्चुअलाइजेशन तो हमें पता चल गया कि वो क्यों आया। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो हमारे सर्वर की यूटिलाइजेशन थी, जो हमारे सर्वर की नीड्स थी, फुलफिलमेंट थी, वो एक ही उससे, मतलब अलग अलग सर्वर्स बनाने से वो फुलफिल नहीं हो रही थी। हम चाहते थे कि वो सारी चीजें, सारी सर्विसेज एक ही मॉडल पे आए। एक ही मॉडल पे मतलब एक ही सर्वर पे हम वो सारी चीजें इम्प्लीमेंट करें, वो सारी सर्विसेज इम्प्लीमेंट करें, ताकि जो हमारे सर्वर की यूटिलाइजेशन है वो पूरे अच्छे से हो। ठीक है, इससे हमारी कॉस्टिंग वगैरह कितनी बच जाती थी। ठीक है, जब वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं कि क्लाउड का क्या होता है। ठीक है, क्लाउड बेसिकली आया क्यों। तो हमें पता है, जैसे नेटफ्लिक्स है हमारे पास, ठीक है, या कह लो अ, कोई भी एक वेबसाइट ले लो, फ्लिपकार्ट ले लो या अमेजोन ले लेते हैं। ठीक है, अमेजोन क्यों लेते हैं, क्योंकि क्लाउड की सर्विस सबसे पहले अमेजोन ने ही चालू करी थी। ठीक है, तो फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, तो अब इनका क्या है, इनकी अपनी अपनी सेल्स आती है। फ्लिपकार्ट की आती है कुछ सेल, उसका कुछ नाम होता है। अमेजोन की आती है अपनी सेल, उसका कुछ नाम होता है। तो उस सेल में क्या होता है, सपोज इनके मंथली यूजर जो होते हैं, सॉरी, पर सेकंड यूजर जो होते हैं, सपोज वो होता है 1 लाख। तो जब सेल आती है, जो सेल वाला टाइम होता है, उस समय इनके यूजर्स हो जाते हैं 10 लाख। ठीक है,
पर ये जो प्रिपेयर्ड होते हैं ये कैसे होते हैं, 1 लाख यूजर के हिसाब से। इनके जो सेटअप हो रखा होता है सर्वर का, वो 1 लाख यूजर्स के हिसाब से हो रखा होता है, 1 लाख यूजर्स पर सेकेंड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तो इनकी सपोज 1024 रैम है। ठीक है, अपना सीपीयू का सपोज इनके पास 128 कोर है। ठीक है, स्टोरेज इनके पास 20 TB है। तो ये सूटेबल है जब तक हमारे पास 1 लाख पर यूजर्स आ रहे हैं। ठीक है, पर जब सेल वाला टाइम आता है, उस टाइम क्या होता है, जो यूजर्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं पर सेकंड के हिसाब से। ठीक है, तो उस समय इनकी जो यूटिलाइजेशन होती है, सपोज वो 2056 रैम चली जाती है। ठीक है, अपना कोर इनके 256 कोर चले जाता है, और जो टीबी है स्टोरेज है वो 50 TB तक चले जाता है। ठीक है, सेम ऐसा ही नेटफ्लिक्स का होता है। जैसे नेटफ्लिक्स में क्या होता है, ऐसा थोड़ा ना कि यार जो इनकी सीरीज आ रही होती है हर बार वो सारी ट्रेंडिंग में जा रही होती है। कोई कोई सीरीज आती है ना जिसका बहुत ज्यादा हाइप बन जाती है। ठीक है, जैसे हमारे पास थी मनी हाइस्ट आई। ठीक है, स्क्विड गेम आया। ठीक है, मिर्जापुर के सीजन आए। तो इनमें क्या होता है, जो यूजर्स की यूटिलाइजेशन होती है वो भी बढ़ जाती है, और जितने पर यूजर्स आते हैं सेकंड में वो भी बढ़ जाते हैं। तो ऐसा थोड़ा ना कि यार नेटफ्लिक्स ने ऐसा बना रखा है कि मेरे इसमें अगर एक बारी में 10, उनको तो उन्होंने भी सपोज ऐसे बना रखा है कि 50,000 यूजर्स पर सेकंड 50,000 यूजर्स पर सेकंड के हिसाब से बना रखा है। पर जब कोई सीरीज ऐसी आती है जो थोड़ी ट्रेंड में चली जाती है, तो फिर ऑब्वियसली यूजर्स जो पर सेकंड लॉग इन करते हैं वो भी बढ़ जाएंगे, जो स्ट्रीम करेंगे वो भी बढ़ जाएंगे। तो कितना जा सकता है, वो सपोज 3 लाख चले जाता है पर सेकंड, 3 लाख यूजर पर सेकंड। तो इनको भी तो अपने सर्वर में चेंजेस करने पड़ेंगे। तो और ऐसा नहीं है कि यार ये सीरीज पूरे महीने चलेगी। वो सीरीज तो यार एक दिन में खत्म हो जाती है, या 2 दिन या 3 दिन या एक हफ्ता चलती है। ठीक है, वो ऐसे लॉन्च करते हैं ना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, या एक बारी में सारी लॉन्च कर देते हैं। ठीक है, तो यूजर्स कब तक उनके साथ रहते हैं, लगभग एक वीक तक। तो एक वीक तक क्या है, उनकी जो यूटिलाइजेशन होगी उस सर्वर की वो हाई होगी। ठीक है, तो बेसिकली उन्होंने जो प्रिपेयर कर रखा है वो अपना कैसे कर रखा है, 50,000 यूजर्स पर सेकंड के हिसाब से उन्होंने अपना कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर रखे हैं। सपोज 128 GB और 64 कोर। ठीक है, और अपना 20 TB, ये इनके लिए इनफ है 50,000 यूजर्स के हिसाब से। पर जब कोई सीरीज आती है, फिर ये लोग क्या करेंगे, अगर 3 लाख यूजर्स पर सेकंड आ गए तो तब तो उनकी जो यूटिलाइजेशन होगी वो बहुत होगी। सपोज इनको 512 GB चाहिए क्योंकि स्ट्रीमिंग वगैरह चल रही है। ठीक है, और 256 कोर वगैरह चाहिए, और वही समझ सपोज 100 TB तक इनको स्टोरेज चाहिए। तो इनकी जो यूटिलाइजेशन है ये बढ़ गई, तो फिर ये कैसे इसको फुलफिल कैसे करते हैं। ऐसा तो कर ही नहीं सकते ना कि यार ये यही वाला जो सर्वर है इसी को यूज करे ये पूरा महीना। अगर इसको पूरा महीना यूज करेंगे और ये यूज 7 दिन हो रहा है बस, तो क्या होता है इससे, हमारी जो बाकी 23 दिन की कॉस्टिंग है वो तो खत्म हो गई ना। तो ये तो दिक्कत है। तो इसलिए आजकल क्या होता है, स्टार्टअप्स जो होते हैं बड़े प्यार से चालू होते हैं। क्यों चालू होते हैं, एक मिनट पहले ऊपर वाला पॉइंट कवर कर देते हैं। तो इसलिए बेसिकली क्या होता है, जब ये 2000 अगर इनको इतनी रैम वगैरह चाहिए, तो ये सारे किस में चले जाते हैं, क्लाउड में चले जाते हैं, क्लाउड की सर्विसेज ले लेते हैं। तो उस क्लाउड से क्या होता है, इनको जितने टाइम के लिए सर्विस चाहिए उतने टाइम के लिए ये इसको यूटिलाइज करेंगे, बाकी टाइम के लिए ये उसके पैसे नहीं देंगे। ठीक है, तो इस बेसिकली इस क्लाउड कॉन्सेप्ट से क्या हुआ ना, तो आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे स्टार्टअप चालू हो जाते हैं बड़े प्यार से। ठीक है, कोई भी स्टार्टअप चालू हो जाता है, कोई डोमेन नेम देता है। ठीक है, कोई अपना कोई भी बिजनेस चालू करता है। ठीक है, एक्स वाई जेड जो जो भी बिजनेस है, तो वो बेसिकली कैसे चालू कर पा रहा है, वो तो अपना जो उसका एक सेटअप का कॉस्ट होता था। मैं यहाँ पे स्टोरेज की बात कर रहा हूँ, स्टोरेज। ठीक है, रैम वैम जितने सर्वर्स वगैरह इंस्टॉलेशन डिवाइसेस वगैरह की इंस्टॉलेशन थी, वो तो अब उसकी खत्म ही हो गई है। ठीक है, क्योंकि क्यों खत्म हो गई, क्योंकि यार हमारे पास क्या आ गया, क्लाउड मॉडल आ गया। तो पहले क्या होता था, वो इस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग से पैसे इन्वेस्ट करता था जब तक क्लाउड मॉडल नहीं आया था। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग से पैसे इंस्टॉल करता था। उसकी वजह से क्या होता था, उसकी अपनी कॉस्टिंग आती थी, और वो बिजनेस अगर 1-2 साल भी नहीं चला, मतलब ऐसा भी होता है कि कोई कोई बिजनेस 1-2 साल में भी बंद हो जाते हैं।
अगर वो प्रॉफिट में नहीं जा रहा, तो फिर पहले रिस्क रहता था बहुत, क्योंकि हमारी जो इनिशियल कॉस्टिंग थी वो बहुत होती थी, ठीक है। अब वो सब कुछ नहीं है, ठीक है। इसके बारे में कुछ होता है, वो भी बाद में बात करते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे बोलते हैं कॉपेक्स और ओपेक्स, ठीक है। अगर हमें जब भी अपना, देखो एक चीज को, इससे पहले एक चीज और बताता हूँ। जैसे हमारे पास ना कुछ क्लाउड सर्विसेज मॉडल है, ठीक है, प्लेटफॉर्म्स है। कौन कौन से है? सबसे पहले तो AWS, ठीक है। AWS से ही हमारा क्लाउड की सर्विसेज स्टार्ट हुई थी। दूसरा है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट का एश्योर, ठीक है। तीसरा है हमारा गूगल का, जिसे हम GCP बोलते हैं। क्या होता है ये? गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। चौथा हमारा अलीबाबा, चाइना का है, ठीक है। तो इसका शायद वो है अपना जैक मा करके कुछ है, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम भी अपनी क्लाउड सर्विस का कोई प्लेटफॉर्म बनाए, या फिर हम अपना कोई अपना ओन सेटअप बनाए, तो उसके लिए हमारे पास क्या मॉडल होता है? अगर हम चाहते हैं हमारा अपना क्लाउड का सेटअप हो, तो उसके लिए हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए। वो होता है कॉपेक्स और ओपेक्स। बेसिकली कुछ नहीं है, ये हमारी क्या है, ये कितना हमें पैसा कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। एक तो हमारा क्या है, ये कॉपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। और ओपेक्स मतलब ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब समझ गए, स्टार्टिंग की जो भी इनिशियल कॉस्ट होगी, जो भी हमारा हार्डवेयर में पैसा लगेगा, सॉफ्टवेयर में पैसा लगेगा, वो सारी, ठीक है। और ऑपरेशनल मतलब जब भी हम अपनी कंपनी को रन करते हैं, तो हमारा क्या होता है, उसको ऑपरेशन करने की हमारी एक अलग कॉस्टिंग होती है। जैसे कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी का, मैन पावर, वो सारी चीजें, ये सारी चीजें हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। तो कंपनीज क्यों यूज करती है हमारा ये जो CSP मॉडल होता है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर मॉडल होता है, क्यों यूज करती है? क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं इससे? इससे एक तो मेंटेनेंस इनको नहीं रखनी पड़ती, लो मेंटेनेंस, ठीक है। जब तुम्हारे पास वो डिवाइसेस फिजिकली है ही नहीं, तुम्हारा सर्वर वगैरह तुम्हारे पास कुछ फिजिकली है ही नहीं, तुम सारी चीजें वैसे यूज कर रहे हो, मतलब क्लाउड बेसिस पे यूज कर रहे हो, वो जो जिस कंपनी की तुम सर्विस ले रहे हो, वो अपने एंड पे चीजें मैनेज करेगी। तो इसलिए तुम्हारी मेंटेनेंस क्या हो गई, लगभग जीरो हो गई, ठीक है। और कूलिंग की कोई कॉस्ट नहीं आएगी, नो कॉस्ट इन कूलिंग, ठीक है। हमें पता है, अगर हम अपना कोई भी डेटा सेंटर बनाते हैं, ठीक है, अगर उसमें चार पांच रैके भी है, तो भी हमें उसे कूलिंग देनी पड़ती है अच्छी खासी। लगभग रात भर AC ऑन रहेगा, दिन भर AC ऑन रहेगा, चाहे समर्स हो विंटर्स हो, वो AC हमेशा ऑन ही रहेगा, ठीक है। वरना डिवाइसेस में दिक्कत आ जाएगी, वो जल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और क्या होता है, हमारे पास लेस स्पेस होगा, ठीक है। मतलब हम स्पेस कम यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। और स्टोरेज, मोर स्टोरेज, कितना भी हम स्टोरेज यूज कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे मेन चीज इन सबको मिला के जो हो रही है, वो क्या है, कॉस्ट कटिंग। तो बेसिकली कंपनीज क्यों जाती है इसमें, उनकी जो इनिशियल कॉस्टिंग होती है, एक तो वो खत्म हो जाती है, और जो ऑपरेशनल कॉस्ट होती है वो भी खत्म हो जाती है। अबे ऑपरेशनल कॉस्ट में ना, इसमें हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे, कुछ मॉडल्स पढ़े थे, IaaS, PaaS और SaaS। ये बेसिकली होता है क्या, इसके बारे में भी अभी बात करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि अभी जैसे नेटफ्लिक्स का एग्जांपल दिया, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये नेटफ्लिक्स क्या एक मेथड यूज करता है, हम उसे बोलते हैं इलास्टिसिटी, ठीक है। मतलब तुम जितना यूज कर रहे हो ना, जितनी चीजें यूज कर रहे हो, बस उस टाइम में उतना ही यूज करेगा। मतलब अगर जैसे अगर दिल्ली में क्या हो रहा है, यहाँ पे यूजर ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा, उसकी क्लाउड सर्विस मॉडल कैसे यूज करेगी कि अभी मैं इतनी देर के लिए इतना स्टोरेज यूज कर रही हूँ, या इतना CPU, जो भी चीजें वो XYZ चीजें यूज कर रहा है, वो इतनी देर के लिए यूज कर रही है, उसके बाद मेरा यूज नहीं होगा, ठीक है। वो मिली से अगर कोई सेकंड में यूज नहीं हो रहा, तो वो सेकंड में उसको क्लोज कर देगा, फिर वो उसकी कॉस्टिंग नहीं लेगा, ठीक है। तो आजकल जो क्लाउड मॉडल्स आ रहे हैं, वो ऐसे ही आते हैं कि तुम जितने सेकंड के लिए चीजें हमारी सर्विस यूज कर रहे हो,
उतनी सेकंड के लिए आपको पे करना है, ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो अब क्लाउड के कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड, ठीक है। तो इसकी एक बेसिक से डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू एनआईएसटी। एनआईएसटी क्या है? नेटवर्क इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी, जो भी अमेरिका की है, ठीक है। अ सर्विस, म्यूट करो, म्यूट म्यूट, अभी म्यूट करो। हेलो, अभी अभी थोड़ी देर में बात करते हैं, एक बार खत्म करते हैं, खत्म होने वाला है, थोड़ा सा रह रहा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एनआईएसटी क्या होता है? अ सर्विस टू बी कॉल्ड एज अ सर्विस टू बी कॉल्ड एज अ क्लाउड सर्विस। कब कहलाएगी वो एक क्लाउड सर्विस? जब कुछ इसमें ना क्राइटेरियाज होते हैं या कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जब वो उसको फुलफिल करेंगे। जैसे क्या होता है? पहला है हमारा ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, ठीक है। तो तुम बताओगे यार तुम्हारी डिमांड कितनी है, कि यार मेरे को 20 टीबी चाहिए, ठीक है, इतना मेरा सीपीयू है। अगर सपोज मेरे को ऑनलाइन अगर मेरे को अपना ग्राफिक डिजाइनिंग वीडियो एडिटिंग करनी है, तो मेरे को जीपीयू की पावर हाई चाहिए। तुम अपने हिसाब से बताओगे उसको, तुम्हें कोर की कितनी यूटिलाइजेशन है, तुम्हें जीपीयू की कितनी यूटिलाइजेशन है, तुम्हें रैम की कितनी यूटिलाइजेशन है। तो ये सारी तुम बताओगे सर्विसेज कि मेरे को ये चीजें चाहिए, ठीक है। और ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस से क्या मतलब है? What do we understand by broad network access? It means that whenever, whenever and wherever we want to access our service, we can access it. But how we can access it? We can access it with the help of internet. So whenever and wherever, कभी भी और कहीं भी हमें अपनी सर्विस को यूज करना है, तो हम उसको कर सकते हैं। बट एक शर्त है, हमें उसके लिए क्या चाहिए? We want the internet connection, okay, without internet we cannot access, okay। और एक होता है रिसोर्स पूलिंग। तो बेसिकली इसके अंदर ना 5 चीजें होती है, ठीक है। तो एक होता है हमारे पास रिसोर्स पूलिंग। रिसोर्स पूलिंग क्या, इसको हमने एक मल्टी टेनेंसी भी कहते हैं, मल्टी टेनेंसी, ठीक है। तो बेसिकली मल्टी टेनेंसी क्या होता है कि हम एक ही फिजिकल मशीन के ऊपर मल्टीपल कंपनीज की चीजें रन कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? ऑन वन फिजिकल मशीन, ऑन वन फिजिकल मशीन इट कैन मेक मल्टीपल वर्चुअल मशीन फॉर मल्टीपल क्लाइंट्स और कंपनीज, ठीक है। और कौन सी चीज है, 1 2 3 4 होगा शायद, रैपिड इलास्टिसिटी, ठीक है। रैपिड इलास्टिसिटी से मतलब क्या है? अगर हमारे, मैंने एक वर्ड यूज करा था ना नेटफ्लिक्स पे, वहां पे इलास्टिसिटी, तो वो यही है, यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बेसिकली? पीपल वॉचिंग नेटफ्लिक्स, ठीक है। तो बेसिकली हमें जब, हाँ जी, तो हमें जब भी जितनी भी हमें नीड है सर्वर की यूटिलाइजेशन की, अगर सपोज मेरे को दिन में 24 आवर्स होते हैं, ठीक है, तो 2 आवर्स मेरी जो यूटिलाइजेशन है वो बहुत हाई है, और बाकी 22 आवर्स मेरी यूटिलाइजेशन कम है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है? रैपिड इलास्टिसिटी। तो जितना तुम सर्वर्स को, अगर सपोज 2 घंटे के लिए अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी यूटिलाइजेशन हाई हो जाए, ठीक है, मैं अपना जो सर्वर है
उसकी सर्विसेज ज्यादा यूज करना चाहता हूँ, मतलब अपना स्टोरेज ज्यादा यूज करना चाहता हूँ मैं, उसका जीपीयू ज्यादा यूज करना चाहता हूँ, उसका सीपीयू रैम वगैरह सब चीजें ज्यादा यूज करना चाहता हूँ, तो फिर वो सिर्फ मेरे को सिर्फ 2 घंटे के लिए करना है, एक दिन में 2 घंटे के लिए करना है, और बाकी 22 घंटे मैं यूज तो करूंगा पर कम यूज करूंगा। तो फिर इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, रैपिड इलास्टिसिटी। तो ये फीचर भी तुम्हारे क्लाउड मॉडल में होना चाहिए। ठीक है। और सबसे मेन वन वो क्या है हमारा, मीटर्ड सर्विस। तो मीटर्ड सर्विस क्या होती है, जितना हम यूज कर रहे हैं, जितना हम यूटिलाइज कर रहे हैं, उतना आप पैसे पे करोगे। पहले टैक्सी चलती थी ना जिसमें मीटर कनेक्शन होता था, जितना वो चलेगी उतना ही हमें पे करना है। ठीक है। अब स्टार्टिंग में हमने कुछ बात करी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ मॉडल, प्लेटफॉर्म एज अ मॉडल। ठीक है। और अपना क्या था, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ठीक है। तो ये सारे मॉडल्स थे हमारे पास, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड अपना सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो ये सारे मॉडल क्या है, ये हमारे क्लाउड्स के मॉडल है। ठीक है। अब इन मॉडल के अंदर क्या होता है बेसिकली, जैसे हमारे पास सिंपल चीज है, हमारे पास ये क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ मॉडल। ठीक है। इसकी जो कॉस्ट होती है वो लीस्ट होती है सबसे, बाकी मॉडल से। दूसरा है हमारे पास प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, इसकी जो कॉस्ट होती है वो कम होती है अपना सॉफ्टवेयर वाले से। ठीक है। तो हम यहाँ पे लेस कॉस्ट लिख लेते हैं, बट जो हमारा आईएएस होता है उससे ज्यादा होती है। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। और ये हमारे पास हो गया तीसरा, जो कि क्या है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ठीक है। तो ये सारे मॉडल्स यार हमारा कौन देता है, ये हमारे देते हैं सीएसपी, जो कि वो क्या होता है, हमारे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है। तो बेसिकली आप देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली जब हम चाहते हैं कि जो हमारे हार्डवेयर रिसोर्सेज है, ठीक है, हम अपनी क्लाउड सर्विसेज में सिर्फ वो हार्डवेयर रिसोर्सेज लेना चाहते हैं, जैसे कि स्टोरेज हो गई, ठीक है, रैम हो गया, ठीक है, जीपीयू हो गया, ठीक है, और जो भी चीजें एक्स वाई जेड ओ एस टू, नहीं ओ एस नहीं आएगा। ठीक है। तो जीपीयू रैम स्टोरेज, ठीक है, ये सारी चीजें हमारी किस में आ गई, इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गई। किस में आ गई, तो जब भी हम अपने क्लाउड से, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो जब भी हम अपने क्लाउड से हार्डवेयर रिसोर्सेज की सर्विसेज लेंगे, मतलब जो हमारी इंफ्रा की कॉस्ट होगी उसे हम अपने जो इनिशियल सेटअप है, हम अपना इंफ्रा नहीं बनाना चाहते, हम वो क्लाउड से लेना चाहते हैं। हम अपनी क्लाउड सर्विस को बोलेंगे कि हमें बस आपकी जो हार्डवेयर रिसोर्सेज है वो चाहिए, हमें कोई भी ना आपसे प्लेटफॉर्म चाहिए ना कोई सॉफ्टवेयर चाहिए। ठीक है। तो फिर हम बस इसके पैसे देंगे, बाकी सारी चीजें हमारी होगी, सॉफ्टवेयर हमारा होगा, उसके अंदर जो हम ओएस डालेंगे वो सारी चीजें हमारी होंगी, वो सारी चीजें हमारी होंगी, हमें बस आपका जो फिजिकल एक्सेस है वो चाहिए। ठीक है। जो फिजिकल डिवाइसेस है वो चाहिए, हमें अपनी कॉस्टिंग बचानी है इनिशियल वाली। ठीक है। तो इसलिए इसकी कॉस्ट क्या होती है, कम होती है। अब यहीं पे आ जाता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, उसमें क्या आ गया हमारा, हमारा ओएस आ गया। ठीक है। तो सपोज जितने भी टाइप के हमारे पास उस मॉडल में हम सर्विसेज यूज कर रहे होंगे, तो वो सारे किस में आ गए, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज पे आ गए। ठीक है। कि हम क्लाउड से ही बोल रहे हैं कि हम आपका इंफ्रा भी यूज करेंगे और हम आपका ओएस भी यूज करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज करेंगे। सपोज अगर यहाँ पे है विंडोज सर्वर 2011, ठीक है, डेल का कोई सर्वर है, तो उनको अगर मल्टीपल टाइप्स ऑफ सर्वर चाहिए, तो वो नहीं चाहते कि यार हम अपना वो सब पे करें, खरीदे वो सारी चीजें, तो हम चाह रहे हैं कि हम आप ही का ही ओएस भी हम आप ही का ही यूज करें। ठीक है। अब आ जाते हैं सॉफ्टवेयर वाला। तो बेसिकली हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं, कंपनी से बहुत सारे सॉफ्टवेयर रन कर रहे होते हैं। जो बिलिंग होता है उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर होता है, जो अपना मॉनिटरिंग होता है उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर होता है, तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए अलग सॉफ्टवेयर होता है, एचआर के लिए अलग यूज होता है, मतलब जो पंच इन पंच आउट करना होता है जिसमें अटेंडेंस वगैरह रिकॉर्ड होती है, उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर यूज होता है। तो कंपनी नहीं चाहती कि हम वो सारे सॉफ्टवेयर अपने एंड पे उस पर काम करें, मतलब अपने अपने पास रखे वो सारी चीजें। वो चाहती है कि मैं ऐसा कोई कोई मेरे को क्लाउड सर्विस मिल जाए जिसके हेल्प से मैं वो सारी सर्विसेज उठा सकूं, मेरे पास बहुत पैसा है। ठीक है।
तो मैं वो अपने एंड पे मैनेज नहीं करना चाहता, वो मैं चाहता हूँ कि हमारे क्लाउड वाले ही मैनेज करें। हम अपने एंड पे मैनेज नहीं करना चाहते, हम सर्विसेज लेने के लिए रेडी है। मतलब वो चाहते हैं कि वो छोटी-मोटी चीज़ों पे ध्यान ना दे, ठीक है? तो वो एक थर्ड पार्टी वेंडर रखे जो कि जैसे एज़ अ क्लाउड, ठीक है? तो वो उनसे ये सारी सर्विसेज ले, ठीक है? तो हम उसे कौन-सी सर्विसेज कहते हैं जिसमें हमारे एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर ये सारी चीज़ें आ गई, उसे हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मॉडल, ठीक है। तो बेसिकली ना इसके अंदर कुछ चीजें होती है जैसे कि हमारा एप्लीकेशन, डेटा, रन टाइम, ठीक है। मिडलवेयर, मिडलवेयर क्या होता है, ये बेसिकली कोडिंग वगैरह कुछ होता है जिसमें क्या होता है हमारा एक डेटा दूसरे डेटाबेस में कैसे जाएगा, उसका कुछ काम होता है इसका, ठीक है। अपना ओएस हो गया, वर्चुअलाइजेशन हो गया, ठीक है, सर्वर हो गया, स्टोरेज हो गया और अपना नेटवर्क हो गया, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ तक का पार्ट कितना होता है, किसका होता है, आईएएस का। और अपना रन टाइम तक का इसका होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, पीएएस का। और बाकी सारा सॉफ्टवेयर से एप्लीकेशन वगैरह डेटा वगैरह सारा कौन किससे हम ले रहे हैं, क्लाउड से ले रहे हैं। तो ये क्या आ गया, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस आ गया।